So, first of all, I would like to offer my uh, my worship and prayer to all the God and Goddess who is here, and I also would like to express my deepest sincere respect to Principal Ma'am and Vice Principal Ma'am and all the faculty member whosoever is present here. And now I'm going to the proceed with the next part, that is next part of science education, that is fourth section. Fourth section, pedagogy and assessment. This is slide number 1, and this slide number 1 is basically dedicated for explanation flow strategy. Means how I will propagate my explanation till the last slide. So this is what talking about. So this is my first topic, pedagogy and assessment. Sir, How pedagogy? I request you to be bilingual because Hindi and Sanskrit staff is also there. एटलीस्ट आपको 10 मिनट में अपना विषय ऐसा रख देना है कि आज हिंदी और संस्कृत वाला भी साइंस से कुछ सीख के जाए. Definitely. तो bilingual we should be. So in this slide there are two sections given to you, pedagogy of science and assessment of science. So how pedagogy of science work and how assessment of science could be done, I will explain this portion in the last slide. So let's move on the second slide, that is pedagogy of science. So I'm going to explain what is meaning of pedagogy. This is a simple word. It means or it refers that what are the best method or what are the best technique, what are the best mechanism to deliver or to project your content in front of the student so that he could able to understand perfectly, efficiently, right? यानी हम अपनी बातों को किस प्रकार से स्टूडेंट के सामने इफिशिएंटली बताएं कि वो हमारी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए. दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ, आर यू कैन सिंपली आर्ट ऑफ टीचिंग. पेडागोजी ऑफ साइंस हियर मीन्स I am going to discuss, I am going to explain the subject matter with respect to science point of view. पेडागोजी ऑफ साइंस मीन्स कि किसी सब्जेक्ट को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेहतर तरीके से आप स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कंटेंट को. दैट इज व्हाट पेडागोजी ऑफ साइंस. एंड इफ़ यू रीड द NCF PDF, अगर आप NCF PDF को पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रिक्टली एक पॉइंट मेंशन किया गया है अबाउट द लर्निंग ऑफ साइंस. लर्निंग ऑफ साइंस परफेक्ट कैसे होगा उसके लिए 2 उसने कंडीशन बता रखी है. लर्निंग ऑफ साइंस in this regard NCF has put their enormous effort to guide us, right. उसका पहला पॉइंट कहना है कि perfect learning of science does not depend on learning knowledge, theory और fact. Knowledge, theory and fact, इससे काम नहीं चलेगा. ये लगभग सभी लोग अपना प्रेजेंट कर पाते हैं, बट तो on what factor learning of science actually depend on? Let me tell you, learning of science basically depend on 2 factors. Learning of science basically depend on 2 factors. It has 2 major components. First component, learning of science on the basis of theory, fact and knowledge. And second component, which is very very important, that is connection between practical learning application in the daily life, real world, real application with real life, right? So let me give you, I am going to give you 2 examples. I will give you 2 examples, and with the help of 2 examples, the whole content of slide number 3 and slide number 4, slide number 2 and slide number 3 will be covered, right? मैं दो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ. 2 एग्जाम्पल की हेल्प से स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 का कंसेप्ट एक्सप्लेन मैं करूँगा. So here Gear down your speed. क्या चीज? Gear down your speed. Okay. So I am going to demonstrate a simple experiment. You need to observe this experiment very carefully, right? And I will raise question at the end of completion of this experiment demonstration. राइट मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल इन आवर कंट्री आर लो बजट बेस्ड स्कूल. दे कैन नॉट अफोर्ड हाईली एक्सपेंसिव लेबोरेटरी आइटम. इन सच सिचुएशन, उस स्थिति में हाउ आई कुड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, वेरी परफेक्टली, राइट. सो लेट मी गिव यू अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन. Suppose this is an object, it has some mass, right? This is object and it has some mass.
and this object is kept at certain height above the ground. If I drop this body, it will certainly fall on the ground, right? It will definitely falls on the ground as soon as I drop it, right? Let me repeat this experiment once again. Observe carefully. Now I am going to repeat this experiment once again. It is again falling on the ground. After certain duration of time, it will collide with the ground, right? So let's this experiment once again. Oh my God, it is again falling on the ground. So one who is observing this experiment, जो भी इस experiment को observe कर रहा था, आपके दिमाग में इस experiment को देखने से क्या दिमाग में कौन कौन से question arise होंगे? Why this body is falling on the ground? Why it is not escaping away from the ground? And second question could be arise in your mind, how it is falling? Third question, who is the main culprit behind this body to set up into the motion? मतलब इस बॉडी को नीचे आने के लिए कौन जिम्मेदार है? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज इन योर माइंड. यही तो हम करते हैं बच्चों के सामने कि पहले एक्सपेरिमेंट को पेश करेंगे और उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो ही विल स्टार्ट एनालाइजिंग. वो सोचना शुरू करेगा कि इसका रीजन क्या होगा, और इस प्रक्रिया में उसके पास कैपेसिटीज डेवलप होगी. कैपेसिटीज क्या होता है, एनसीएफ के बहुत बिगनिंग में समझाया गया है कि कैपेसिटीज का मतलब क्या है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट वन बाय वन. एंड अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं समझा दूंगा तो ये सेकेंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ही सारा कंटेंट छुपा हुआ है जो कि एनसीएफ की पीडीएफ में दिया हुआ है. तो वाई दिस बॉडी इज फॉल्स ऑन द ग्राउंड, because this event is occur in the nature and it is manifested or controlled or governed by there is a special law that is called law of gravity. Gravity है, if there is no gravitational force this body will not going to move at all, right? अगर gravitational force नहीं होगा तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी. So who is the main culprit behind it? Gravitational force. Gravitational force है, तो gravitational force कारण है इस बॉडी को मोशन प्रोड्यूस कराने के लिए. So force is the reason, force is the causes, and what is its effect? Motion. So there is the two factor, one is effect, other is cause. Force is input, motion is output. This is what written in this slide. Cause and effect relationship. ये बच्चे को आना चाहिए कि हमारे नेचर में जो हो रहा है इवेंट है उसको देख करके वो कैसे कॉज एंड इफेक्ट को डेवलप कर पाता है. उसके पास ये क्वेश्चन करने की एबिलिटी आनी चाहिए कि व्हाई दिस बॉडी इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ दिस बॉडी इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है. एंड व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज इफ आई रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम द कंसिक्वेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. मतलब अगर इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम भी करता हूँ तो इसका रिजल्ट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है. सिंपल सी लॉजिक है. तो एक सबसे पहले स्टेप यही होता है, हमारी साइंस की जो बुनियाद टिकी हुई है वो किस बात पे टिकी हुई है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. बिना एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के हम यहाँ कुछ भी बात नहीं कर सकते. पहला हमारा स्टेप होगा हमारे सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद जो स्टेप होगा क्वेश्चनिंग का होगा, बच्चा उससे क्वेश्चन करेगा और समझेगा. आई एम गोइंग टू गिव यू सेकेंड एग्जाम्पल, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपसे दीदी हेलो, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, राइट? मान लीजिए कि हमारे हाथ में हमारे एक हाथ में एक हाथी है. आप छत पे चढ़ जाइए, एक हाथ में क्या है? हाथी है, और दूसरे हाथ में क्या है? चूहा है. दोनों गणेश भगवान के क्या हैं? भक्त हैं. तो एक हाथ में हाथी है, दूसरे हाथ में चूहा है, और छत पर से मैं दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ता हूँ, एक साथ दोनों को मैं ड्रॉप करता हूँ. हाथी तो भारी है, ग्राउंड पे कौन पहले गिरेगा? हाथी की, कोई नहीं बोलेगा साइंस का, हाथी की चूहा? हाथी गिरेगी. हाथी गिरेगी. यस सर नो? हाथी गिरेगा. यस सर नो? सर आप बताइए. छत पर से एक हाथ में हमारे चूहा है और एक हाथ में क्या है? नहीं बैठे रहिए, कोई बात नहीं. एक हाथ में चूहा है और एक हाथ में हाथी है, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉप करता हूँ. हाथी भारी है, पहले गिरेगी. क्या बात है, मेरे दिल के आरमा पूरा किए इन्होंने. यही तो मैं इंतजार कर रहा था. अब देखिए, जो साइंस है ना, साइंस हमारे कॉमन परसेप्शन, कॉमन आइडिया,
कॉमन थिंकिंग, कॉमन रीजनिंग, कॉमन लॉजिक पे काम नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे दोनों साथ ही गिर रहे हैं, दोनों को टाइम सेम लग रहा है एग्जैक्टली, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड क्या बोलता है, हमारा ह्यूमन माइंड कॉमन बेसिस पे रिजल्ट को देता है, बोलता है दोनों हाथ ही पहले गिरेगी। ऐसा हो, आप लोगों ने देख लिया, बच्चा भी यही सोचता है, बच्चा भी यही सोचता है। मेरे करियर में जितना भी मैं बैच पढ़ाया हूँ, दिस क्वेश्चन ऑलवेज आई ट्राई टू आस्क विद द स्टूडेंट एंड ही नेवर रिप्लाइड करेक्ट आंसर। हमेशा वो गलत बताता है, मैं भी बताता था। इसीलिए साइंस की बुनियाद किस पे टिकी हुई है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हमारे सब्जेक्ट का बिलीफ सिस्टम है, इससे हमको, इसके बिना हमारा काम ही नहीं होगा। सर तो हाथी क्या गिरा के देखना पड़ेगा? क्या चीज? नहीं, आप एज ए स्टूडेंट, सॉरी, I will prove it mathematically. Let me show you. यस सर। Sorry. Take it. Okay. If I will drop these two body, this suppose कंसिडर करिए कि ये हाथी है, ये क्या है, चूहा है। इट हैज ग्रेटर मास, इट हैज लेसर मास। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस टू बॉडी, बोथ विल टेक एग्जैक्टली सेम टाइम। ओ माय गॉड, बोथ विल टेक, वेट फॉर, कागज इज नॉट अ रिजिड बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिजिड बॉडी। देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज 7वीं और 8वीं क्लास, yes, कागज is also mass. There are some terms and condition in this experiment. 7th, 8th, 9th, 10th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना है तो हम बहुत ज़्यादा हाई फाई बात नहीं करेंगे, एक लिमिट के बाद हम बता रहे हैं किस बच्चों को। मैंने आपसे एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन किया था, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे आपने कहा, आपने उदाहरण हाथी और चूहे का दिया, तो बच्चे को बताना था कि आप साइंस की भाषा में कहना क्या चाह रहे थे। नहीं तो मेरी तरह बच्चा पूछ लेगा कि हाथी को गिरा के देखा है क्या आपने। नहीं, हम उसको गिरा के नहीं देखेंगे, हम उसको इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने दिमाग से यह समझे कि हाथी बड़ी होती है, उसका मास ज़्यादा होता है, चूहा छोटा होता है, तो ऐसा लगता है कि बड़ी बॉडी पहले गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बड़ी चीज़ें बहुत जल्दी डूब जाती है पानी में, लेकिन एक सिक्का भी तो डूब जाता है। तो कॉमन परसेप्शन हमारा फेल हो जाता है साइंस में। Our belief system is entirely depend upon experiment and observation, and it must be repeated by unlimited number of times. तभी जाके हम अपना भरोसा कायम रख सकेंगे, वरना हमारा सब्जेक्ट की बुनियाद ही नहीं टिक पाएगी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। You all people are paying your attention very nicely, and that's why I am bowing my head in front of you. Right here, it is written that it is strictly written in the NCERT. The science and physics and its facts does not work on the common perception. ये नहीं काम करता है, तो बच्चों को पहले एक्सपेरिमेंट कराइए ही कराइए। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं साइंस में तो सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोई भी फिलॉसफी बनाए हैं। EVS और साइंस अप टू 8th वाले टीचर्स हाथ उठाइए भाई, सारे जो EVS पढ़ाते हैं 1st to 5th और 6th to 8th साइंस, ये सारा सेशन आपके लिए, समझ रहे? चलिए, बाकी 9 to 12th वाले कराते हैं, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। क्योंकि आई एम गोइंग टू रनिंग आउट ऑफ माई टाइम, इसलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी बोलने के चक्कर में कभी मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। टाइम हमारे पास लिमिट कम है, वरना ये 30 मिनट का प्रेजेंटेशन है जितना NCF में लिखा है, 30 से 35 मिनट लग जाएगा इसको आराम से एक्सप्लेन करने में, तो हमारे पास टाइम की कमी है। देखिए, और कहीं ना कहीं हम ये जल्दी मैं लेता हूँ, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने से स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है, पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होती है, जैसे ऑनेस्टी हुआ, इंटीग्रिटी हुआ, राइट। अगर मैं तो इसीलिए अगर साइंस भी एक जरिया हो सकता है अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए। हाँ, तो हमने तो यही तो बताया है, तो हम तो यही बताए हैं, हमने तो यही एक्सप्लेन किया है अभी। लैंग्वेज अलग था, भाषा अलग थी, बात मतलब वही था।
ठीक है, तो देखिए अगर इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे साइंटिफिक वैल्यू कैसे डेवलप होती है। साइंटिफिक वैल्यू यहाँ पे किसको बोला गया है? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को। ये पर्सनालिटी ट्रेट है, बेसिकली ये पर्सनालिटी ट्रेट है, लेकिन यहाँ साइंस में इसको क्या बोलेंगे? साइंटिफिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये साइंस के थ्रू जनरेट हमारे अंदर हो रही है। जैसे एक बच्चे को मैं पूछता हूँ कि जाओ लैब में, एक वहाँ पे मैं पेन रखा हूँ, बर्नर है, बर्नर को मैंने सेट कर दिया, पैन में पानी डाल दिया, और मैं जानता हूं कि वो बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने देर में होगा? 10 मिनट में। ये मैं बात जानता हूं, बच्चा जानता नहीं है। अब मैं उसको बोल दिया कि 2 स्टूडेंट को भेजा लैब में कि जाओ, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर तुम्हारे थर्मामीटर में शो करेगा तो मेरे पास रीडिंग लेके आना। एक बच्चा था 5 मिनट के अंदर ही आ गया, दूसरा बच्चा 10 मिनट के अंदर आया। जो बच्चा 5 मिनट के अंदर आ गया, मैं समझ गया कि वो बच्चा कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो 10 मिनट से पहले रीडिंग नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं क्या डेवलप हो रहा है? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसके लिए साइंस को कितना बेहतर तरीके से पेश किया जाए, समझाया जाए, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल एनसीएफ ने हमें गाइडलाइन के थ्रू दिया है। उसका कहना है कि अगर लर्निंग साइंस व्हाट इज मीनिंग ऑफ परफेक्ट लर्निंग साइंस, अगर किसी साइंस को लर्न करना है परफेक्टली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट का एक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए। किससे? बाहरी दुनिया से। आप लोग ने देख लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारा एक से एक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ग्लास स्लैब पढ़ाया था, तो ऑफिस में ग्लास स्लैब कांच का टुकड़ा रखा जाता है ताकि कागज़ न उड़ पाए, तो उस पर एक छोटा सा जोकर बना हुआ था रिसेप्शन के पास। अभी 1 दिन पहले मैं पढ़ाया था, वहाँ 10th का एक बच्चा था, बोला कि सर देखिए जोकर थोड़ा सा सरफेस के ऊपर दिख रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कल पढ़ाया था एपियरेंट डेप्थ, वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो हमने बोला कि हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर पा रहा है। और मैं भी उस चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो अच्छा कर लिया, तो बहुत बड़ी काबिलियत होती है। 10th का वो स्टूडेंट था। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा है कि अगर आप अपनी चीज़ों को समझाते हैं, साइंस के चीज़ों को, तो उसमें 3 चीज़ों की आम भूमिका है। 3 चीज़ों की, पहला है लेबोरेटरी, दूसरा है क्लासरूम और तीसरा है फील्ड। जिसका जहाँ सही जगह होगा उस जगह उसको प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको, अब मैं अगली स्लाइड में आता हूँ, डिटेल में आऊँगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, कोई बहुत बड़ी खास नहीं है, ठीक। इसमें एक बात और बोला गया है कि कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कि साइंस का एक फंडामेंटल रूल है कि आप अपने आइडिया को शेयर करिए। एक आइडिया विल जनरेट अनदर आइडिया विल जनरेट थर्ड आइडिया। इसी प्रकार से विकास हो सकता है और कोई इसका दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, वोकेबलरी, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा कवर कर रहा हूँ। वोकेबलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साइंस का जो स्टूडेंट है, जो साइंस का टीचर है, उसको साइंटिफिक वोकेबलरी बोलना ही बोलना चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं और हम भाषा बोलेंगे इनफॉर्मल, तो कैसे काम चलेगा? वो तो आगे जा करके साइंटिफिक भाषा में इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, बातों को रख नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो एनसीएफ बोलता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कभी कभी स्लैंग लैंग्वेज यूज करेंगे हम। क्यों? क्योंकि कभी कल ही मैं वेक्टर पढ़ा रहा था 11th क्लास के बच्चों को। जब मैं बोला कि 2 वेक्टर, 2 एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 180 होगा। जब मैं बोला कि दोनों वेक्टर होंगे, दोनों के चोच अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180 एंगल होगा, सब हंसने लगे। तो कभी कभी हम इनफॉर्मल भाषा बोलेंगे, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस उनकी होनी चाहिए साइंटिफिक वर्ड की, राइट। उसके बाद आ जाता है कुछ अप्रोच बताए गए हैं साइंस को बेस्ट तरीके से कैसे पेश किया जाए। उसके लिए कुछ अप्रोच है। हर कंडीशन में ये अप्रोच अलग अलग तरीके से लागू होती है। जैसे लेबोरेटरी का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम? लेबोरेटरी, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को बिना लेबोरेटरी के दिखा दिया, क्योंकि सारे स्कूल बजट इसको पेश नहीं कर सकते। इतना बड़ा सेटअप कहाँ से हम खरीदेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिखा दिया आपको। तो कुछ लेबोरेटरी के ऐसे चीज़ होते हैं जिसको लेबोरेटरी में ही जाकर दिखाना है। जैसे पत्तियों के सेल दिखाना है, आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, नेकटाई से नहीं देख सकते। दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बच्चा बार बार नाखून से चबाता रहता है, बार बार डांटने के बाद नहीं मानता है, उसको एक बार माइक्रोस्कोप के अंदर डाल करके उसका सैंपल दिखा दीजिए, वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं कर चुका हूँ। उसके बाद होता है फील्ड। जिसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को समझाना है स्पीड ऑफ बॉडी, तो टीचर क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम याद करो, 2 दिन के बाद भूल जाता है, 4 दिन के बाद गारंटी है भूल जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझाना है, तो अगर मुझे समझाना है तो मैं क्या करूँगा? सीधा उसको ग्राउंड में ले जाऊँगा,
क्योंकि ये समझाने वाली बात है एक्टिविटी के थ्रू। ग्राउंड में ले जाऊंगा, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हर सपोज करिए कि सारे पेड़ के बीच की दूरी क्या है 50 मीटर। हमारे पास स्टॉप वॉच की कमी नहीं है, मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है। बोलूँगा कि बच्चा तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाओ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाओ, और सपोज करिए कि 2 मिनट टाइम लगा, 50 मीटर की दूरी 2 मीटर में कवर किया है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, कितना करेगा? अरे 2 मिनट में 50 मीटर चला तो 25 मीटर पर मिनट स्पीड आ गई। अब ये बच्चा कभी नहीं भूलेगा क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू लर्न कर रहा है। थर्ड पॉइंट है क्लासरूम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए क्लासरूम में बहुत सारी बातों को समझाया जा सकता है, जैसे लेंस है, लेंस को आप दिखा दीजिए, प्रिज्म को दिखा दीजिए, ग्लास स्लैब को यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, ये बच्चा को दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाना है बच्चे को, 8वीं ग्रेड का बच्चा है, 9th ग्रेड का बच्चा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कैसे समझाएं? क्योंकि वो तो अबोध बालक है, उसको क्या पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बड़े बड़े टीचरों की हालत खराब हो जाती है, तो उसको नहीं समझ में आ पाता है, उसको कैसे समझाया जाए? क्योंकि बुक में तो सब कुछ लिखा है, अब बुक में जो भी लिखा है अगर उसको पढ़ करके बच्चा समझ लेता तो फिर टीचर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बुक में बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीज़ों को लिखा है, टीचर उसको सिंपलर फॉर्म में प्रोजेक्ट कर देता है बच्चों के सामने और समझ में आ जाता है। कहिए तो मैं करके दिखाऊं, टाइम की कमी है लेकिन मैं दिखा देता हूं 2 मिनट में। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हर लोग फील करते हैं, राइट। सो दिस इज बोतल राइट, एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बोतल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। आसपास में क्या है? एयर है, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड दिस बोतल। बोतल के अंदर भी कुछ एयर के मॉलिक्यूल हैं, बाहर के एयर के मॉलिक्यूल इस वाल पे टकरा रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल इस वाल पे टकरा रहे हैं। लेट मी शो यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक इसके इफेक्ट को आप नहीं समझेंगे इसकी कहानी को समझ नहीं पाएंगे, कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। If I remove all the atmospheric air which is trapped inside this bottle, तो होगा क्या? This bottle get distorted its shape। अरे अंदर की हवा निकाल दिया, बाहर की हवा ने इसको अपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और लगा करके इसको चिपका दिया। जो फोर्स लगाया दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm। वही होता है। मैथमेटिक्स बच्चा नहीं समझ पाएगा, छोटे क्लास की बच्चा, उसको ऐसे समझाएंगे वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके इफेक्ट को देख रहा है कि इसके पास ताकत है, बोतल को पिचका दिया तो सोचो कितना प्रेशर लगती होगी। ये कहानी होती है, ऐसे मतलब बच्चों को बताया जा सकता है। सॉरी, ठीक है सर, मैं ले लूँगा सर, दीजिए। इसकी हालत सही कर देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही गया, बाहर की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और फिर शेप इसका क्या हो गया? सही हो गया। बाहर कोई प्रेशर नहीं था तो इसका शेप बिगड़ गया था। तो ऐसे समझा देते छोटे बच्चों को। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, लेकिन इस बंद करें सर कि मतलब टाइम है? ओके, इसके अलावा कुछ और भी अप्रोच, बंद करें? चलिए 5 मिनट में, जैसे देखिए मैं कैसे ख़त्म करता हूँ एकदम जल्दी बोल करके। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी अप्रोच दिए गए हैं एनसीएफ के द्वारा। बोला गया है कि जैसे हैंड्स ऑन साइंस का मतलब साइंस को अपने हाथ में मजाक बना लीजिए। जब देखिए साइंस का एक्सपेरिमेंट अपने हाथों के थ्रू करिए, ये मजाक बन जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगी चीज़ों को। उसके बाद बोला है डिस्कवरी अप्रोच। हमारे नेचर में हो रही बहुत सारे इवेंट होते हैं, कोई बंदा आता है उसको डिस्कवर करता है, तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच होना चाहिए कि उसको फर्दर कैसे एडवांस किया जाए, है कि नहीं? मोबाइल अभी केबल से चार्ज हो रहा है, केबल लेस कैसे चार्जिंग होगी? इतना बड़ा डब्बा लेकर के आगे चल के कौन ढोएगा? इसका फर्दर एडवांसमेंट क्या है? क्यों नहीं हम अपने हाथ की स्क्रीन पे ही चला दें? कार्बन से हमारा शरीर बना है, कार्बन डेटिंग। आगे आने वाले समय में हम मोबाइल अपने हाथों पे चलाएंगे, तो इसका एडवांसमेंट पार्ट है, डिस्कवरी नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये बच्चे के दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है इंक्वायरी अप्रोच। व्हाई एंड हाउ, चौक क्यों गिरा, कैसे गिरा, सुबह जल क्यों देते हैं, कपड़ा को फैलाकर क्यों सुखाते हैं, है कि नहीं? ये सब सारे क्वेश्चन बच्चे के अंदर करने की एबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए।
और ये तभी होगा जब आप साइंस और एक्सपेरिमेंट को उसके सामने प्रोजेक्ट करेंगे, दिखाएंगे। ऐसे हवा में बोलने से नहीं होगा कुछ भी। And in this slide there are many local professional are working there at site, right? तो वहाँ पे हम क्यों नहीं स्टूडेंट को भेजें? जैसे इसमें क्या है, कारपेंटर है और क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत सारे, दे आर कॉल्ड लोकल प्रोफेशनल। दे आर वर्किंग एट द स्मॉल स्केल लेवल, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं स्मॉल स्केल पे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लोकल प्रोफेशनल एंड दे आर फाउंड इन द विलेज। और यहाँ पे बच्चा फ्री में जाएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, हाउ मशीन इज वर्किंग, हाउ सिस्टम और हाउ अ प्रोडक्ट और हाउ कमोडिटी आर बीइंग मॉडिफाइड और अपडेटेड, कैसे इसको उस कास्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा रहा है, ये सब सारी टेक्निक बच्चा जा करके वहाँ सीखेगा, तो अपने क्लासरूम कोर्स में जो पढ़ा है उसको वहाँ से इंटीग्रेट कर पाएगा, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, ग्रो कर जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेशन। किसी चीज़ को अगर समझाना है, जैसे अब हम लोग बोलते थे कि देखो फुल मून है, हाफ मून है, बचपन में ये भी दादी लोग बोलती थी कि ऊपर ये जो मून है रात में जो दिखता है उस पर 2 पर्सन है हल चला रहे हैं, ये सब फर्जी की बात है। कैसे समझ में आएगा बच्चों को, कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है? एक मॉडल बनाइए थोड़ा सा, उसके सामने एक्टिविटी के साथ वो इंगेज हो जाएगा, हाथ पैर चलाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। वहाँ पे सन है, सन के बीच में अर्थ है, अर्थ के पास में मून है कि नहीं, और सब एक दूसरे के साथ गियर से कनेक्टेड हैं, तो गियर क्या करेगा, सब बॉडी को चलाएगा, तो उसको प्रैक्टिकली दिख जाएगी कि कैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, कैसे मून किसके सामने, अर्थ के सामने, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ये प्रैक्टिकली बच्चा देखेगा तो फिर उसको हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी, क्योंकि इमेज, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि चीज़ों को इमेज के फॉर्म में बहुत दिनों तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। उसके बाद है रिसोर्सेस इन साइंस टीचिंग। जैसे इसमें ये बोला है कि साइंस में सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो होता है लेबोरेटरी होता है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो लो बजट बेस हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो तो एफोर्ड नहीं कर पाए, हम कैसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे? तो वो एक्सपेरिमेंट जिसको बिना पैसे के दिखाया जा सकता है, बच्चों को करके दिखाएंगे। सिंपल पेंडुलम को दिखाना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, कैसे करेंगे? एक धागा ले लेंगे, एक छोटा सा मास लटका देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हमारे पास स्टॉप वॉच मोबाइल है ही, टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिखा देंगे, सिंपल। इसके लिए बड़ा सा सेटअप मंगाने की जरूरत नहीं है दिल्ली से, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। जिसे मान लीजिए कि मेजरिंग जार दिखाना है बच्चों को, हमारे वाटर का वॉल्यूम मेजर करना है तो मेजरिंग जार चाहिए। अब कहाँ से इसको बनाएं? एक जग लेंगे, उस पर स्केल से कैलिब्रेटेड लाइन बना देंगे, वाटर उसमें पोर करेंगे, बोल देंगे कि देखो हमने मेजर कर लिया, कोई मेजरिंग जार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल से अपने इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को हम बनाने की कोशिश करें। हर चीज़ खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा स्कूल ऐसे हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक क्लासरूम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये बोला है एनसीएफ का कहना है, ये एनसीएफ का कहना है कि आइडियल क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी बैठ सके, पढ़ सके। और यह भी जरूरी है कि जब टीचर किसी एक्टिविटी को पेश कर रहा है, समझा रहा है, तो उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, तभी तो एक्टिविटी कर पाएगा, वरना कैसे कर पाएगा? असेसमेंट ऑफ साइंस। असेसमेंट ऑफ साइंस का मतलब है इसमें कि बच्चा जब साइंस सीख जाए, पढ़ा दिया जाए, सारे कंसेप्ट वो सीख जाए, तो लास्ट स्टेप आता है कि उसका असेसमेंट कैसे करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें। हम कैसे पता करें कि हमने जो पढ़ा है वो सीखा कि नहीं सीखा? तो उसका एक बेहतर तरीका है कि उसको कन्वेंशनल तरीके से मत पूछिए, कोई भी क्वेश्चन कन्वेंशनली मत पूछिए, नहीं तो सीधा सीधा पूछेंगे तो बता देंगे। जैसे मैं कल ही पढ़ा रहा था, बच्चे से पूछा 10th क्लास में कि बताओ एक ऑब्जेक्ट है जिसका वर्चुअल इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, सेम दूरी पे बन रहा है, कौन सा मिरर होगा? बच्चा बता दिया सर प्लेन मिरर, सबके सब बता दिए। लेकिन वहीं मैं घुमा के क्वेश्चन को पूछा m = +1 होगा, मैग्नीफिकेशन +1 होगा, तो बताओ कौन सा मिरर होगा? कोई नहीं बता पाया। तो असेसमेंट ऐसे करना, जैसे रीजनिंग में बोलते हैं ना, फुआ के लड़की का भाई का मतलब जो भी है वो क्या मेरा लगेगा, घुमा के क्वेश्चन को पूछना है, तो बच्चे की ये इंटरप्रिटेशनल एबिलिटीज सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहीं उसके अंदर ग्रो कराने की हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So this is all about my discussion. All the resources are taken from the NCF PDF only. Thanks for listening, watching, and everything.